اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں اللہ کا سب سے بڑا آج شکر گزار بن جاؤں پوری مخلوق میں اللہ، کیونکہ ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ سے کہ اللہ تو مجھ سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی تو مجھ سے بات کرتا ہے، کیا یہ موقع کسی اور انسان کو، بشر کو ملے گا؟ تو اللہ نے بتایا موسیٰ علیہ السلام کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو ایسا موقع دوں گا میں، جو روزہ رکھے گا بھوک پیاس اور اس کے جو آنکھ اندر چلے جائیں گے، منہ سے بدبو آئے گی اور وہ نڈھال ہو جائے گا روزے کی افطار تک، اور ویسے وقت وہ ہاتھ اٹھائے گا میں اس کے قریب ہوں گا۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے قریب اللہ تعالیٰ جس طرح سے ہم کلام ہو کے ہوئے بات کر کے بات چیت کی آپ نے، یعنی ان کے پیغام کو لیا اور آپ کا جواب دیا موسیٰ علیہ السلام کو، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میرے اپنے بندے جو روزہ رکھتے ہیں افطار کے وقت میں ان کے قریب ہوتا ہوں اور ان کی ایک دعا قبول کر لیتا ہوں۔ تو آج میرے اللہ نے 5 دعائیں قبول کر لی، میں ابھی آپ کو بتاؤں گا۔ سب سے پہلے میں شکر بجا لاتا ہوں، آج میری خواہش تھی کہ میرے ویڈیو 5 ملین تک لوگ دیکھیں، آج وہ میرا خواب جو ہے تعبیر ہو کے سامنے آیا، خواب کی تعبیر ملی مجھے، ڈریم کم ٹرو ہوا۔ دوسرا یہ کہ میرے بچوں کو دونوں کو اسکالرشپ کالج کی ملی، اور دونوں جو ہے ہائر اسٹڈی کے لیے نیو یارک کے اندر یونیورسٹیز کو جا رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ بھی ایک میری دعا قبول ہوئی۔ تیسری دعا، 2 مہینے پہلے میری بیوی اچانک کسی نے جو ہے پیر کے جو ہے زخم کو، یعنی وہ گر گئی تھی سب وے میں، یہاں ٹرین کا جو اسٹیشن ہوتا ہے اس میں، تو ایک مسلم ڈاکٹر ہی تھا، اس نے ایسی ہیوی ڈوز دے دی، اس کی پوری چھاتی اور پوری سانس رکنے لگی راتوں میں، اور اتنی طبیعت خراب ہو گئی۔ تو پھر دوسرے ڈاکٹر کے پاس گیا تو انہوں نے بتایا کہ یہ گولیوں کا اثر ہے۔ پھر انہوں نے آپریشن کیا، ایک زندگی سے دوسری زندگی اللہ نے دوبارہ دی، جیسا میں نے میری بیوی کے اندر جو ہے صحت پائی، اور شکر بجا لایا اللہ کا۔ یہ بھی دعا میری قبول ہوئی۔ پھر میرے ویڈیو یہ سال 30 لاکھ لوگ 3 ملین سے زیادہ دیکھے، یہ دعا قبول ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ میرے کو ایک ایسا موقع دیا جو میں جوری ڈیوٹی کی کرنا نہیں چاہ رہا تھا، میں 8 سال سے ٹال رہا تھا ان کو۔ ایک بار گیا تھا، ان لوگوں نے کہا تم اب 6 سال آنے کی ضرورت نہیں، تو وہ لوگ خود مجھے اجازت دے دیے تم 6 سال کے بعد میں آنا، کیونکہ یہاں 8 سال کے بعد روٹین ہوتی ہے ایک بار جوری کرنے والے کو۔ تو اس وقت مجھے $40 دیے وہ لوگوں نے۔ پھر اب جب میں یہ بار ڈیوٹی جوری کی کر کے آیا، اس سے پہلے میں 2 بار سامان آیا تو پوسٹ پون کر دیا تھا، تو ان لوگوں نے بچایا تم فرار نہیں ہو سکتے، اسکیپ نہیں ہو سکتے، کسی بھی طرح تم کو یہ جوری ڈیوٹی 5 ہفتے تک کرنی پڑے گی، 4 ہفتے مکمل اور 1 دن منڈے کا کراتے ہیں، بہت کم ہوتا ہے 2 مہینے کراتے ہیں۔ منڈے کے دن اس واسطے کراتے ہیں کہ نئے جو جوررس ہوتے ہیں وہ ان کو سلیکٹ کرتے ہیں، اور پھر وہ ٹیوزڈے سے کام کرنا ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ میں نے وہ بھی خواب پورا کر لیا، خواب کی تعبیر ملی۔ تو 5 کامیابیوں کے ساتھ اللہ نے مجھے صحت یاب رکھا، اللہ نے مجھے حیات دی، میرے بچوں کے ساتھ میں ہوں، میرے بیوی کے ساتھ میں خوش ہوں، اور اللہ نے مجھے دنیا کی ساری نعمتیں دی۔ میں اتنا خوش ہوں کہ جو ہے میں کبھی سچن ٹنڈولکر کا گھر دیکھا تو اتنی جو ہے اس وقت اتنا کمانے کے باوجود بھی مڈل کلاس جیسی لائف تھی، اور میرے پاس لگژریس لائف ہے یہاں امریکہ میں۔ آپ میرا مکان اپارٹمنٹ دیکھ سکتے ہیں۔ میں کبھی کبھی باہر کے ویوز بھی بتانے والے ویڈیو بنایا، لیکن اس میں باہر کی چکا چوند روشنی نے میرے ویڈیو کو اچھا نہیں بنایا، مگر تم اس میں بلڈنگیں بھی دیکھ سکتے ہیں جہاں میں 24 فلور پہ رہ کر آرام سے جو ہے لگژریس لائف کا لطف اٹھاتا ہوں۔ ہڈسن ریور بازو ہے، پوری جو ہے بلڈنگوں کی سڑکوں کی نظارے دیکھ سکتا ہوں۔ تو الحمدللہ مجھے اللہ نے بہت شاندار زندگی دی، اس کا شکر بجا لاتا ہوں۔ اب میں میرے مسلمانوں کو بتاتا ہوں، 5 ملین لوگوں نے میرے ویڈیو کو دیکھ لیا آج کے ریکارڈ کے حساب سے۔ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں، اذان 786 اسلامک انوائٹ ڈالیں گے تو وہاں میرے جو ویورز ہیں پورے ٹوٹل، اس میں بتایا جائے گا 50,22,000، اور میں 1 لاکھ ڈیلیٹ کر دیا تھا، تو 51 لاکھ
25,000 ऑलरेडी मेरे व्यूवर्स देख चुके, शुक्र बजा लाता हूँ और उनको दुआ करता हूँ जो मुसलमानों ने मेरे देखे अल्लाह उसको अजर दे और उनको भी जज्बा हो कि दूसरों तक बात पहुँचाए और अल्लाह उनके भी दुआओं को कबूल करे, आमीन सुम्मा आमीन, और उनके भी हाजतों को पूरा करे, आमीन सुम्मा आमीन, सारे मुसलमानों के लिए। अच्छा, अब मैं एक और ख़ास बात बता दूँ तुमको। मैं खान्स का जो वीडियो बनाया था, शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान, सैफ अली खान का जिक्र था उसमें, या फिर फरदीन खान समझो या इरफान खान समझो या और भी नए खान्स जो आ गए फिल्मी दुनिया में, तो इस तरह से मैं मौत याद दिलाना चाहा। वो वीडियो मेरा 5-6 साल में 17 लाख लोग आज मुकम्मल देख ली। और मैं हकीर हूँ, मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, उर्दू अच्छी नहीं है, मेरी अरबी भी अच्छी नहीं है, मैं एक अनपढ़ की तरह इंसान हूँ। मैंने कभी किसी को सब्सक्राइब करो मत कहा या मेरी ख्वाहिश थी, नहीं, वो अपने जज्बे से सब्सक्राइब करे और वो आज 15,000 सब्सक्राइबर्स है, जबकि कल एक ही दिन में 200 से ज़्यादा सब्सक्राइब करे। इस तरह से मेरे वीडियोस इतने धूम मचा रहे हैं कि कल एक दिन में 23,000 लोग देखे। इसका क्या है पस मंज़र ये कि मैं एजुकेटेड नहीं हूँ, दूसरा ये कि मैं ये चैलेंज कर रहा हूँ पूरे स्कॉलर्स को, हिंदुओं के, क्रिश्चियंस के भी। मैं 1000 निशानियाँ बताता हूँ, तुम बताओ, जबकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, जबकि मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुफ्ती आज़म नहीं हूँ, मैं बता रहा हूँ 1000 निशानी। अब इसमें एक निशानी बताऊँगा अल्लाह की इंशाल्लाह। अब आ जाओ, 15,000 सब्सक्राइब हो गए, 17 लाख खान्स का देख लिए, 51,25,000 मेरे व्यूवर्स आज तक देखे इन 6 सालों में, अल्लाह का शुक्र बजा लाता हूँ। अब इससे ज़्यादा मेरी हसरत तो है नहीं, हरी हिरिस भी नहीं है, और अल्लाह जो है यही वीडियो पर मुझे पैसे भेजेंगे, बुलाओ यूट्यूब वाला, शायद जो भी आएंगे मैं अल्लाह के रास्ते में खर्च कर दूंगा। ऑलरेडी आए, मैं खर्च कर दिया, एक गरीब की शादी में दे दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम मैं कर रहा हूँ वो मेरे पूरे कामयाब है, वो बताना है। अल्लाह का मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ये दावत के काम के निस्बत से मुझे दुनिया के कई जो है ख्वाहिशात को मुकम्मल करने का मौका दिया। अल्लाह ताला, अल्लाह से मैं दुआगो हूँ सारे मुसलमानों के लिए, क्योंकि हम लोग जो है एक मानों में अल्लाह के पास हमारा एक जो है वीडियो डाल देते हैं और वो डिलीट कर सकता है, बीमारियों से शिफा कर सकता है, हमारी बीमारियों। अल्लाह हमारी बीमारियों से शिफा करे। तो मेरे परवरदिगार, मैं तेरी शान के लिए एक बात बता रहा हूँ। ये हिंदू कहते हैं कि कृष्णा बचपन में जो है माखन चुरा लेता था, गोपियों के साथ खेलता था। तो आप सोचो, एक इंसान बच्चा पैदा हुआ और इंसान का बच्चा ही पैदा होता है, और फिर उसका नुत्फ़ा था, गंदा नुत्फ़ा, गंदगी से पैदा किया अल्लाह ताला ने। इंसान हक़ीर है, बल्कि कुरान में बता रहा, मैंने तुझको नुत्फ़े से पैदा किया, यानी तेरी हैसियत क्या है तू सोच ली। तो ये खुदा जो समझते हैं हिंदू, इनको सोचना चाहिए ये गंदे नुत्फ़े से इंसान पैदा होता है, और बच्चा सिर्फ जो है इंसान का होता है, खुदा का नहीं। क्योंकि खुदा इतनी बड़ी दुनिया बनाने वाला, खुदाई रखने वाला, इतना छोटे बच्चे के जो है रूप में या उसकी शक्ल में क्यों आएगा। दूसरी बात ये नुत्फ़े से क्यों पैदा होगा। दूसरी बात यह कि इंसान कुरान में अल्लाह ताला बताए 1000 साल तक ही जिया इस दुनिया में, तो उसकी हयात अगर 1000 साल है तो हिंदू का खुदा मर गया, सामने नहीं आ रहा। अकॉर्डिंग टू इंसान, अकॉर्डिंग टू ह्यूमन, अकॉर्डिंग टू नॉलेज, विजडम, लॉजिक यही बताती है कि इंसान मर जाता है, इंसान जो है रूपोश हो जाता है, इंसान खाक में मिल जाता है। क्रिश्चियनों का गार्ड भी इसी तरह ही मरियम अलैहिस्सलाम के पेट में पैदा हुआ, 9 महीने रहा, गंदगी से, गंदी जगह से निकला, फिर वो 28 या 32 साल तक दुनिया में रहा, फिर अल्लाह उसको उठा लेके दिए और क़यामत तक नहीं भेजूंगा बोले। तो इस हिसाब से अगर क्रिश्चियन समझता है उनका खुदा इंसान था तो वो मर गया, जो इंसान की उम्र है, या फिर इंसान नुत्फ़े से पैदा हुआ या नुत्फ़े से पैदा नहीं हुए ईसा अलैहिस्सलाम। हम नुत्फ़े से पैदा हुए इंसान, और आदम बिना नुत्फ़े से पैदा हुए माँ बाप के, ये भी नहीं सोच रहा है
क्रिश्चियन। तो मालूम यह हुआ कि आदम से भी गए गुजरी ज़िंदगी का उनके पास जो है आखिर मुकाम है ईसा अलैहिस्सलाम का, क्योंकि माँ की बच्चेदानी से निकले, माँ के पेट में रहे 9 महीने, तकलीफ़ दिया उन्होंने माँ के पेट में रह के, लातें मारती है। और औरत बताती है, माँ अब जो बनती है बीवी आपको बताएगी कि बच्चा लात मार रहा। इंसान की ये सब फितरतें हैं, इंसान मरता है, ये बात ये क्रिश्चियन नहीं समझ सकते। अल्लाह ताला कहा कि मैंने इनको उठा लिया, वो आसमानों में है, वो जन्नत में है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख के आए, फिर वो क़यामत से पहले आएंगे और क्रिश्चियनों को बता देंगे मैं भी पैगंबर था, या हूँ या रहूँगा, मैं अब उम्मती हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में उम्मती हूँ। इसमें जो महदी अलैहिस्सलाम भी होंगे उम्मती, ईसा अलैहिस्सलाम भी होंगे उम्मती। तो इस तरह से इंसान के रूप में जो आया, उसकी नुतफ़े की, उसकी हयात की, उन्हें मर जाता है, उन्हें ज़िंदगी में ज़वाल भी देखता है, तकलीफ़ भी देखता है। तकलीफ़ देखे ईसा अलैहिस्सलाम, उनको बहुत तकलीफ़ दी उनकी उम्मत ने, क्योंकि आए थे वो चिल्ड्रंस ऑफ इज़राइल के लिए। और फिर हिंदुओं के खुदा का बोलते हैं तो जो है हाथी था सर गणेश का, इंसान के जिस्म पे लगा दिया। वो हाथी वाली ज़बान बात करा या इंसानों वाली ज़बान बात किया, ये हिंदुओं को भी नहीं मालूम। अगर वो एक तरह से धाड़ता है शेर की तरह या हाथी की तरह, तो वो धाड़ जो है उसकी ज़बान और वो जो है उसका अंदाज़ मालूम होगा ये जानवर था। और ये हिंदू को मालूम ही नहीं, उन्हें इंसानों जैसा बात करा या हाथियों के जैसा धाड़ा आवाज़ ज़ोर से निकाली। इंसान राम था, राम की बीवी भाग गई, 14 साल तक हार्ड टाइम मिला राम को, उसकी फुदी नहीं ले सका सीता की, उसकी फुदी रावण मारा नहीं मालूम। अगर से उन्हें पाक रही थी 14 साल तक, ये अकेला मर्द इंसान 4 महीने से ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता, हाथ मार लेगा, दांत निकाल लेगा अपनी, दीवाना हो जाएगा। गंदी फिल्में देखेगा, इंडिया में सबसे ज़्यादा गंदी फिल्में हिंदू देखता है, अंदाज़ा करे कि 14 साल कैसा रहा। सबसे ज़्यादा गंदी फिल्म इंडिया देखता है आज। आपको अंदाज़ा होगा कि ये हाथ मार लिया या इसके आर्गन्स गर्म हो गए थे तो इन्हें बर्दाश्त नहीं करा, इसकी शहवत क्यों निकाल लिया इसने। तो हार्ड टाइम मिला इंसान को। कृष्णा गोपी जो है माखन चुराया, पोटियों को नंगी नहाते हुए देखा, ये इंसानों के तरीक़े हैं, ये खुदा के नहीं हो सकते। अब खुदा की शान देखो, ना तो आपको बाइबल में मिलेगा खुदा हमेशा से है, या जो है उसको ऊँग भी नहीं आती, उसको नींद भी नहीं आती, वो मरता भी नहीं, ये बातें कुछ बताया नहीं गया। गीता या वेदास में नहीं बताया गया कि वो उसको ऊँग आती है या वो मरता है या वो थकता है या एक ही हालत में है, ये नहीं बताया गया। सिर्फ कुरान में बताया गया अल्लाह को नींद भी नहीं आती, अल्लाह हमेशा से है, अल्लाह तरोताज़ा तवंगर और जो है इन अल्लाह अला कुल शै, हर चीज़ पर कुदरत रखने वाला, जो हमेशा से मौत का जिक्र भी नहीं है उसके पास। ये इंसान को मालूम हो गया अल्लाह की बड़ी शान है। ये निशानी नहीं बताया मैं, 1000 निशानियों में। और एक निशानी ये बता दूँ, मक्के के अंदर आज उम्रे के अंदर रमज़ान के तीसरे रोज़े की बात कर रहा हूँ, जो अभी वहाँ से वीडियो आया मेरे पास, सऊदी से भी आया, इंडिया से भी आया, सेम हुजूम है वहाँ। 3 लाख से 5 लाख तक होंगे वहाँ पर तवाफ़ करने वाले, कचाकच भरा हुआ है मक्के का हिस्सा। मस्जिद हरम में लोग लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक बोले, सिर्फ अल्लाह सुन रहा बीच दरमियान में, और पूरी दुनिया से आके यहाँ पर अल्लाह हू अकबर, अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है बता रहे। कोई हिंदू का गार्ड बड़ा है सामने है, क्रिश्चियन का गार्ड बड़ा है सामने है, नहीं आ सकता। अल्लाह की शान की तारीफ़ हो रही पूरे मक्का के अंदर, पूरे ताफ कर रहे, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मैं हाजिर हूँ अल्लाह मियाँ बोल रहे। अब सोचो आप, हिंदू का खुदा कहाँ है? एशिया में, इंडिया में। क्रिश्चियन का खुदा कहाँ है? यूरोप में। अब ये दूर दूर से सुन रहे, क्या मर गए? ये बताना है मुझे। इंसान मर गया, इस वास्ते ये अल्लाह अकबर की गूंज रही, अज़ान गूंज रही, फ़ायदे की बात हो रही, नमाज़ पढ़ लो फ़ायदा है, हज कर लो गुनाह धुल जाएंगे, रोज़ा रख लो, आपको अल्लाह ताला ऐसी ऐसी नियामतें देगा आप सोच नहीं सकेंगे।
शान खुदा बताया। देखो कल मैं 96 की मस्जिद में गया इफ्तार में, वहाँ हमने रोज़ा खोला, अल्हम्दुलिल्लाह 1000 लोग थे, 600-700 मर्द इंसान, 500-600 बहनें इफ्तार करने आई। और यही हाल पूरे न्यूयॉर्क की मस्जिद में, इफ्तार मुफ्त खिलाया जाता है। सब कोई ना कोई अल्लाह का बंदा वहाँ पैसे जमा कर देता है सबको खिलाने के लिए। या फिर जो है आप देखेंगे एक ना वाले यहाँ इस तरह की जो है रिलीफ का, जो एक ना का मशहूर है, वो हॉस्पिटल्स का काम करते हैं, स्कूलों का काम करते हैं, जॉब्स की ट्रेनिंग देते हैं। वो जो है आपके अगर कोई केस है, अगर इस्लामी रूल से कोई तुमको यहाँ दबाना चाह रहा, वो केस भी लड़ते हैं। तो एक ना की खिदमत पूरी अमेरिका में गूंज रही। तो ये रमज़ान में बढ़ जाती है। ज़कात देता है मुसलमान जो है इफ्तार खाना खिलाता है, मुसलमान जो है अपने मालिक में कपड़े लत्ते के लिए गरीबों के भेजता है। ये शान किया है, अल्लाह के दिन की प्रैक्टिस चल रही। अल्लाह को पहचानो। अल्लाह अल्लाह अल्लाह।